Hi, I am Amit, Senior Mentor at MBA Easy. I welcome all of you to our YouTube channel. On this YouTube channel, we had promised you to upload videos covering preparation strategy, test taking strategies, conceptual videos, practice questions, discussion of questions that have appeared in CAT before. Then we will also upload videos on VAT and PI related preparation strategy. So all of these things will be uploading, we'll upload these types of videos on our YouTube channel. This is our first video on the concept front, and as you can see from the topic itself, the topic is percentage fraction equivalence. So this is percentage is arguably, or I'm almost very certain in my mind at least, that it is the most important chapter as far as CAT is concerned for very obvious reasons. First, percentage is tested in various ways. In almost all the questions of arithmetic, you will have the concept of percentage thrown into it. In DI, in LR, the percentage, the idea of percentage is tested in several ways. Okay, so every year, if you take direct questions on percentage or percentage related applications, roughly about, I would say 10 questions will be from percentage directly or indirectly. So percentage is a very, very important topic as far as CAT is concerned, or any other MBA exam is concerned for that matter. So the topic that we have decided to take on first is the most important topic, and that is fraction. Now in fraction, we are going to not discuss everything about fraction, but a very important idea, a very useful idea, that is called percentage fraction equivalence. What does it mean? परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही चीज है, दे आर वन एंड द सेम थिंग. So let us understand this and see why this idea is important as far as CAT is concerned. So let us start here. Now जैसे आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि परसेंटेज का अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को, there are two things here. One is per and then you have cent. No, cent means century or hundred. So it means per hundred, right? So it is per hundred. Very classic, old school bookish kind of a definition, but very important definition. Percentage is nothing but per hundred. So when I say 25%, it means 25 per hundred. If I write it mathematically, 25 per hundred is 25 upon 100, which is 1 by 4. So 25% is nothing but 1/4. So if I say I get only 25% of the money that was there, it means that I have only got 1/4 of the money which was there. So it means that percentage is nothing but another way of representing a fraction. So instead of saying I got 1/4, I can also say 25%. So that's the basic idea of percentage. So from here, we can see that a percentage can be converted into a corresponding fraction. Now very clearly we can see that कोई भी परसेंटेज को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. जो भी परसेंटेज है, 25% मीन्स 25 पर 100. हमने क्या किया? 25 में 100 से डिवाइड कर दिया. यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा, से 25% है, उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, तो उस परसेंटेज को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे. सो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू corresponding fraction, and fraction multiplied by 100 will give you corresponding percentage. So you can say that percentage, if it is to be converted into fraction, so we can say x% is nothing but x by 100 fraction terms. और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम से फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो हम कह सकते हैं कि x अगर कोई फ्रैक्शन या x बाई वाई कोई फ्रैक्शन हमेशा ऐसे ही होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो इफ x बाई वाई इज अ फ्रैक्शन, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x बाई वाई इंटू 100. ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट आइडिया है, बस हमें इसी को समझना है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये वीडियो बनाया गया है, ये समझाने के लिए कि परसेंटेज को हम हमेशा फ्रैक्शन में डील कर सकते हैं, बिकॉज परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस आर नथिंग बट द सेम थिंग. सो और इसको क्यों करना है ये आपको आगे समझ में आएगा. जब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में डील करें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है, बहुत टाइम आप बचा पाएंगे एग्जाम्स में. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से जब आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो शुरू से ही ये आदत डालिए कि परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप उसको डील कीजिए, आपका लाइफ बहुत सिंपलर हो जाएगा। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट एडजस्टेड टू दिस आइडिया, बट वंस you make yourself comfortable with this idea of dealing percentage as fractions, your life will become very simple, very easy. Okay, सो ये समझ लीजिए, कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 100 से डिवाइड करके। कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो दिस इज माय सिंपल आइडिया हियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें से 50%, ठीक, तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50/100 हो जाएगा, नहीं? तो 50/100 यानी कितना, 1/2। सो 50% इज 1/2। इसी तरीके से आप सभी को कर सकते हैं, से 1/3 लेते हैं। 1/3 को परसेंटेज टर्म में क्या होगा, 1/3 इंटू 100, विल बी 1/3 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 33.33। इसी तरह से 1/4 है, तो इसका फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 1/4 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 100। सो 1/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्वलेंट क्या होगा, 20%। यानी कि ये जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, उन सभी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। सो 1/6 होगा तो 1/6 इंटू 100, दैट इज 16.67%। सो आइडिया बहुत सिंपल है। सो इसको हम लोग अगर नोट डाउन कर ले, सो कह सकते हैं 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%, 1/4 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.67%, 1/7 is 14.28%. So you can keep on writing like this. 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 is 10%, 1/11 is 9.09%। आप इस तरह से और भी लिखे जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर अप टू 1/16। So 1/12 is 8.33%, 1/13 is approximately equal to 7.7%, 1/14 is 7.14%, 1/15 is 6.67%, 1/16 is 6.25%। तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1/16 तक अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम में कैलकुलेशन में काफी समय बचेगा। ये मैं एडवाइस कर रहा हूं आपको एज अ मेंटोर, एज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर हु हैज रिटन कैट सेवरल टाइम। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में डील करेंगे, यानी जहां भी जैसे 9.09% दिखा, आप उसको क्या करेंगे, 1/11 की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपका काम बहुत आसान होगा। बहुत सारे कैलकुलेशन जो होंगे क्वेश्चंस में वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। क्यों क्यों ये बताया जा रहा है, क्यों हमें ये पता होना चाहिए, इसके पता होने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। सो लेट अस ट्राई टू नो अंडरस्टैंड सम एप्लीकेशन ऑफ इट। इसको क्यों हम लोग क्यों क्यों ये याद रखें, क्यों हम इसको इस तरीके से डील करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों डील करें, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन 53.33% ऑफ 252525, लेट्स से ऐसा है 53.33% ऑफ 252525। सपोज ये कैलकुलेशन है। अगर आप इसको कन्वेंशनली करेंगे तो क्या करेंगे, 53.33% का मतलब 53.33 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 252525। अब ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, देख के ही समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगा, बिकॉज देयर इज अ डेसिमल इन्वॉल्वड हियर एंड देन नो देयर इज अ 6 डिजिट नंबर, फिर ये थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, राइट। लेकिन इसी चीज को ऐसे न करके हम अगर इसको फ्रैक्शन में डील करना चाहें
तो कैसे करेंगे? जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा डेसिमल के बाद वाला देखते हैं क्या है। डेसिमल के बाद क्या है? 0.33। ना 0.33 कहाँ आता था? आप अपना जो 1/16 तक आप अगर याद करे हुए होइएगा तो उसमें चेक कीजिएगा कि 1/0.33 कहाँ आता है। हमेशा ये डेसिमल के बाद का नंबर आपको क्लू को देगा कि इसको हमें किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो आई कैन से हमें ये ध्यान है कि 1/3 वॉज 33.33%। तो 0.33 आ गया, यहाँ भी है। तो हम इसमें एक चीज तो 1/3 ले सकते हैं। 1/3 इज 33.33%। यू कैन टेक दिस। अब 33.33 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? अब इसमें 20 बचेगा, 20%। एंड 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। सो कैन से 53.33% इज नथिंग बट 1/3 प्लस 1/5। सो 1/3 प्लस 1/5 को अगर हम एलसीएम ले लें तो इधर आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8/15। So I can clearly say that 53.33% is nothing but 8/15। हम इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। अगर हम ऐसे करें 8/15 इंटू 252525, चेक करते हैं 5 से 3 टाइम, 5 से कितनी बढ़ जाएगा? 50505। और ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 से कितनी बढ़ जाएगा? 3 1 से 3 20, 3 6 जा 18, 25, 3 8 जा 24, 10, 3 3 जा 9, 35। तो ये हो जाएगा 16835 इंटू 8। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। हमारा कैलकुलेशन क्या हो? सिंप्लीफाई हो गया ना, बिकॉज हमें पता चल गया कि 53.33 इज नथिंग बट 8/15। आइडिया कैसे लगेगा? फिर से ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसी से क्लू मिलेगा। सो डेसिमल के बाद क्या है? 0.33। 0.33 का मतलब हुआ हमें देखना है ऐसा कौन सा फ्रैक्शन था जिसमें 0.33 आता था। हमें ये ध्यान था कि 1/3 में 0.33 आता था। सो 1/3 ले लिया, 33.33 निकल गया। अब बचा कितना? 20। सो 20 इज 1/5। सो यू कैन से 1/3 प्लस 1/5 दैट इज 8/15। सो 53.33 इज इक्वल टू 8/15। यही अप्रोच आपको हमेशा कोशिश करना है। जब भी फ्रैक्शन में रहे, कोई चीज रहे, तो उसको हमें सॉरी परसेंटेज में कोई नंबर दिया रहे तो उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। इस अप्रोच को हमेशा आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है जहां पे भी पॉसिबल हो, क्योंकि इससे आपका बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। अभी आपको मैथ्स में उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि एक पाई चार्ट बना होगा, ठीक है, उस पाई चार्ट में एक ऐसा दिया होगा 53.33, एक जगह दिया होगा 83.33, एक जगह दिया होगा 41.67। अब ये 41.67 आपको लगेगा कि तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन अगर हम उसे फ्रैक्शन में बदल दें तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे भी परसेंटेज दिया रहे आप उसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आइए कुछ और हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे जहां से आपको समझ में आएगा। सपोज एक नंबर है 36.67%। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? 0.67 है, 0.67 किस में आता है? 16.67 किस का था? 1/6 का। तो आई नो 1/6 इज 16.67। तो अब बचा कितना? 16.67 निकल जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा 20%। सो 20% इज हाउ मच? 1/5। तो अगर हम इसको ऐड कर दे तो 1/6 प्लस 1/5 तो आसानी से ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/30। सो आई नो 36.67% इज नथिंग बट 11/30। तो ये फायदा है, कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। ऐसे कई सारे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। से 18.75, अभी 0.75 है, 0.75 तो कहीं भी नहीं आता था। आप ध्यान दीजिए 1/16 तक में 0.75 नहीं आता था, लेकिन 0.5 आता था। 0.5 किस में था? 1/8 में। 1/8 कितना था? 12.5%। 12.5 निकल जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? इसमें से अगर आप 12.5 निकाल लोगे तो बचेगा 6.25। और 6.25 क्या था? 1/16। ध्यान दीजिए 1/8 है 12.5, 12.5 का आधा क्या है? 6.25। तो 1/8 का आधा कितना होता है? 1/16। सो 1/16 इज 6.25। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/16। सो यू कैन से 18.75% इस फ्रैक्शन का, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3/16। कितना काम आसान होगा।
और ये मैं अभी समझा रहा हूं तो आपको इतना टाइम लग रहा है मुझे बताने में, लेकिन मुझे तुरंत निकल जाएगा। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तुरंत निकल जाएगा। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे 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 ये आपके दिमाग में नेचुरली भी खुद ही चला जाएगा, ऑर्गेनिकली चला जाएगा। आपको इसके लिए बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डेली 5 मिनट स्पेंड कीजिए, थोड़ा एक नंबर कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, 1/6 प्लस 2/5, नो 5/6 प्लस 3/4, इस तरह से कुछ कुछ रैंडम लेके देखिए, तो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा। नहीं भी समझ में आता है तो मैंने आपको मेथड बताया है, हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखिए, उसी से क्लू मिलेगा। 0.67 है, अब हम ढूंढेंगे 0.67 कहाँ होता है, तो 1/6 में 6.67 आता है, तो ये निकाल दिया, बचा हुआ 20% मतलब 1/5। यही आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, सपोज करता है 64.44%। ये भी बहुत वियर्ड सा नंबर है 64.44। अब क्या करें इसमें, तो कैसे बताया था, डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे 0.44। 0.44 तो कहीं नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा 1/9, 1/9 में कितना था 11.11%। 0.11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 0.44। तो सीधा क्या करना है 4/9, तो 4/9 क्या हो जाएगा, दिस इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा 44.44%। So you can say this is 4/9, that is 44.44%, प्लस अब 44.44% आप निकाल दोगे इसमें से 64.44 में से, तो कितना बचेगा 20%। सो 20% इज 1/5। So you can say 4/9 plus 1/5 is 64.44%। और फिर इसको एलसीएम ले लिया 45, तो 30 आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 20 प्लस 9 इट इज 29/45। तो हमारा काम आसान हो गया ना, इट हैज बिकम वेरी सिंपल नाउ। 64.44% को कैलकुलेट करने से बेटर है हम 29/45 कर लें, ठीक है। और डीआई में इसी तरह के परसेंटेजेस आपको मिलेंगे, तो अगर आप इस तरह इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो आपका टाइम काफी बचेगा, ठीक है। और टाइम इज वेरी क्रूशियल इन एग्जाम। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 21.42%, ठीक है। 21.42%, ध्यान दीजिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। 21.42% भी बहुत सारे डीआई में आता है। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, हमें सब देखिए 7 से डिविजिबल है, नहीं 21 भी 7 से डिविजिबल है, और ये भी 7 से डिविजिबल है। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। और हमने ये देखा था कि 1/7 कितना आता था 14.28 आता था। ये देखिए 14.28 था 1/7, और 14.28 और 1/14, 1/14 कितना था, इसका आधा यानी कितना 7.14। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा 21.42। तो जब भी 7 से डिविजिबल नंबर रहे 21, 42, इसका मतलब है कि 1/7, 1/41, 14 इसी तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, 1/7 के कॉम्बिनेशन में आएगा। तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/14, दैट इज 3/14। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे परसेंटेज को आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद वाला नंबर ही आपको क्लू देगा, हिंट देगा कि आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन अ वेरी पॉपुलर नंबर जो डीआई में बहुत दिखाई देगा आपको, 41.67%। अगेन आपको पता है 60.67 कहाँ आता था, अभी देखा था यहाँ पे देखिए 1/6 में। तो यहाँ भी वही करेंगे सिंपल, 1/6 इज 16.67%, प्लस 16.67 इसमें से निकाल देंगे, 41.67 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा 25%। 25% कितना होता है 1/4। सो दिस इज 25%। दोनों को ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 12, 3 प्लस 2 5/12। तो हमारा इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या हो गया 5/12। तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद के नंबर्स को देखिएगा, उससे क्लू मिल जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना है। और इसको कुछ प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग कुछ कॉम्बिनेशन लेके 1/13 प्लस 1/8, 2/13 प्लस 2/9, इस तरीके से करके आप कुछ कुछ नंबर्स लेते जाइए, उसको फ्रैक्शन को देखिए कि उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है। कुछ नंबर्स डेली आप प्ले कीजिए, नंबर से खेलिए थोड़ा, आपको ये चीजें आसान लगने लगेगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, डेली 5-7 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी अच्छे से, आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, मुझसे भी अच्छे हो जाओगे।
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आई होप आपको इसका वैल्यू समझ में आया होगा। इसका वैल्यू और समझ में आएगा जब हम लोग आगे परसेंटेज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां आपको इसका एप्लीकेशन और भी अलग तरह का एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा, लेकिन वो किसी और दिन किसी और वीडियो में। ठीक है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव, then please like, share and subscribe our video. Thank you guys. All the best.